students, today we will do histography Indian traditions question answers. Okay, I will give the marking in your textbook. Let's see what's the question one is. Complete the sentence by choosing a correct option. That was this Director General of Archaeological Survey of India. It's William Jones. William Jones. The answer is William Jones. Now the second one is Dash translated the Sanskrit text into Hitopadesh. The answer is B. Friedrich Max Müller. Now we will come to B. Identify the wrong pairs in the following, correct it and rewrite it. Who were the Shudras? Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is a correct one. Stree Purush Tulna, feminist writing. Okay, this is also correct. The Indian War of Independence 1857, Marxist history. This is not correct. The correct answer is nationalist historiography or V.D. Savarkar. Either of you can write nationalist historiography or V.D. Savarkar. Both are correct. But my suggestion is to write nationalist historiography. Okay. The fourth one is also correct. Grand Duff colonial history. Okay. Now the second question is explain the following with its reason. Writing of regional history received a momentum. The answer is on page number 11. Just go to page number 11. Page number 11. Okay. This is page number 11. Second ka first. Okay. From here. The nationalist historiography helped triggering of independence movement of the Indian people against the British. Means national historiography helped in triggering the independence movement of Indian people against the British. Okay, it made the independent movement strong against the British. Okay, in this aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. This Vinayak Damodar Savarkar wrote a book in this aspect. The name of the book was The Indian War of Independence 1857. It was of great importance. Okay. The nationalist historiography provided a momentum to the writing of religional histories too. It now provided a momentum of writing of regional histories, history of region, जगहों की history, हर जगह की history. As a result, attention of historians was drawn to geographical conditions and history of South Indian region. As a result of this, what they do, their attention was drawn towards, उनका attention historian का कहाँ चला गया, geographical condition का. अब particular region के बारे में लिखना है तो उसकी conditions के बारे में लिखेंगे, है ना, and history of South Indian region, और उन्होंने South Indian region के बारे में लिखा. This was the first, second का first answer. Now the second का second. What's the question? I will read the question first. Bhakhar is an important type of historical document. The answer is on page number 9. Just go to page number 9.
from here. Second का second. Bhakar is an important type of historical document of medieval time, the middle of history time. Okay, there are three times: ancient time, medieval time, and modern history. Okay, in the medieval time, it contains eulogies. Eulogies means features of heroes and stories of historic events. Historic events के features के बारे में बताया गया है. Their battles, how they fought, lives of great men. Then again it is continued, the answer is continued. Marathi bhakars are of various types. Sabhasad Bhakar was written by Krishnaji Anant Sabhasad. It was written by this Krishnaji Anant Sabhasad. Okay. Bahu Sahib Sahebanchi Bhakar, Panipatachi Bhakar, okay. Holkaranchi Kaya Piyat. Bhakar can be divided in various types, such as biographies of kings, dynasty history, biography, king की biography. डायनेस्टी मतलब क्या? डायनेस्टी मतलब पीढ़ियों की हिस्ट्री. ओके. डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट ग्रुप. ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवियंस मीन्स उनके दुख तकलीफ, राजाओं की दुखे और तकलीफ, उनकी परेशानी जो थी. बेस्ड ऑन methodology means religious stories. Methodology means religious stories and state administration by king. This is second का second. I have marked यहाँ से first paragraph ये वाला, then second यहाँ से यहाँ तक, फिर ये सब नाम बाहू साहिबांची भाकर, पानीपतांची भाकर, होलकरांची, कैफियत, होलकरांची कैफियत, फिर यहाँ से भाकर से लेकर किंग तक. ये सेकंड का सेकंड आंसर है. नाउ we will move to the next question. Let's see the third one. Answer in the following in 25 to 30 words. Which things are included in the description by Emperor Babur in his autobiography? Page number 8 पे इसका आंसर है. Just go to page number 8. देखो यहाँ पे Babur, the founder of Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzur-ke Babri. It contained the description of battle fought by him. तो उसके अंदर उसने डिस्क्रिप्शन बताया है, पूरा डिस्क्राइब किया है जो बैटल्स उसने फॉट किए हैं. बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड अ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, बारीक से बारीक ऑब्जर्वेशन उसने रिकॉर्ड किया है उसमें, ऑफ वेरियस रीजन, हर जगह का, एंड सिटीज ही ट्रेवल्ड बाय हिम, जहां पे उसने ट्रैवल किया है वो सिटी का बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसने रिकॉर्ड किया है. इंक्लूडिंग लोकल इकोनॉमीज, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ के कस्टम्स कैसे हैं, वहाँ के फ्लोरा कैसे हैं, वहाँ के प्लांट्स एंड देयर लाइफ्स, ये सब कैसे है, वो सब उसने रिकॉर्ड किया है. दिस इज आंसर नंबर 3, थर्ड का फर्स्ट. ओके. Now we will move on to the next question. The next question is, what is the contribution of स्वतंत्रया वीर सावरकर to nationalist historiography? Okay. वीर सावरकर का नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में कंट्रीब्यूशन क्या था? पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है. गो टू पेज नंबर 11. ओके, यहां पे देखो, जो 2.1 का आंसर था वही 3.2 का आंसर है. थर्ड का सेकंड का सेम है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि वीर सावरकर ने कौन सा बुक लिखा था, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है. वही आंसर है यहां से. सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड इज द सेम आंसर. ओके, यू कैन राइट, द क्वेश्चंस आर डिफरेंट बट द आंसर आर सेम.
ओके, वापिस देख लो, द नेशनलिस्ट से लेकर वापिस यहाँ पे आके मूवमेंट से पूरा यहाँ पे इंडियन रीजन्स तक, ये सेकंड का फर्स्ट भी है, थर्ड का सेकंड भी है, पूरा पैराग्राफ। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री? ओके, नाउ वी विल गो टू पेज नंबर, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का पैराग्राफ। पेज नंबर 12 पे है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर एट द सेंटर in writing of Marxist historians. According to analysis, the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historiography में सोसाइटी के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, सोसाइटी के बारे में लिखा गया है। ओके, Marxist historians in India study the transitions within the caste. What do you mean by transition? The changes within the caste system. The changes within the caste system. Among the notable Indian historians who adopt Marxist ideology framework, scholars like Damodar, Dharmanand, Kosambi, Comrade Shripad, Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. They all have contributed. इनका बहुत contribution है। Comrade Dange was one of the founder member of Indian Communist Party. Primitive Communism to Slavery, the book Primitive to Communism to Slavery, the book written by him, present Marxist historiography. यहाँ से पूरा ये पैराग्राफ है, फुल पैराग्राफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का। ओके, फोर्थ का फर्स्ट। नाउ द फोर्थ का सेकंड इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी.के. रजवाड़े टू हिस्टोग्राफी? इसका आंसर अपने को मिलेगा पेज नंबर 11 पे। देखो यहाँ से, रजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग in Marathi on varied subjects like history पे लिखा है उन्होंने, मराठी में लिखते थे वो। linguistics means language, ethnology means past events has been explained in detail, grammar etc. He was the firm opinion that we should write our own history, हम अपनी हिस्ट्री खुद लिखना चाहिए। He compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, महाराष्ट्र के इतिहास मीन्स हिस्ट्री, साधने। ओके, ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रेफेस टू ईच ऑफ 22 वॉल्यूम्स। ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटी। हिस्ट्री क्या है? इमेज है पास्ट सोसाइटी का। इट डज नॉट इंक्लूड only the stories of political image, conspiracy and war for seizing power. He insisted that history should be written only using authentic document sources. यहाँ तक का है 4.2, यानी कि फोर्थ का सेकंड आंसर। ओके, जो भी लिखा जा रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए उसके अंदर, उसको पहले वेरीफाई करके ही लिखना चाहिए। ये ओपिनियन था उनका, रजवाड़े का। ओके, नाउ द कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट इज देयर। जेम्स मिलर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है। जेम्स ग्रैंड डफ द हिस्ट्री ऑफ मराठा, इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ मराठा। देन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा? माउंट स्टाउट एल्फिस्टन। देखो, एल्फिस्टन रोड नाम का स्टेशन था जिसे अभी प्रभा देवी रखा गया है, एल्फिस्टन कॉलेज भी है। माउंट स्टाउट एल्फिस्टन ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। S.A. दांगे, इन्होंने लिखा है प्रिमिटिव कम्युनिटीज ऑफ स्लेवरी। और हु वर द शूद्रास, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है।
अच्छा आगे आ जाइए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर का हो चुका है। ये कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट है, कॉन्सेप्ट चार्ट। इसमें पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी, तारीख फिरोज शाही, PHIRUZ शाही, ओके। जियाउद्दीन बरानी, ओके। ये तारीख फिरोज शाही कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ डॉट डॉट है, ये जगह छोटी थी, मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। अब इसका यहाँ लिखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल फॉर्ट बाय बाबर, तजुक-ए बाबरी, ये किसने लिखा है? एम्परर बाबर ने, ओके। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये किसने लिखा है? रचता रंगनी ने लिखा है, ओके। द रेजिम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, कृष्णा जी आनंद सुभाषाड़ इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, पेज नंबर 10 पे है, इसका वो पैराग्राफ ही है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी पे पेज नंबर 10 पे जाओ, देखो यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, अभी 6 का फर्स्ट। मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइज्ड एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट, दे वर वेरी क्यूरियस, वो बहुत बेचैन थे, जानने की इनकी इच्छा थी ईस्ट के बारे में, कंट्रीज के बारे में, उनके सिविलाइजेशन के बारे में। सम ऑफ द स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन, एडमायर किया उन्होंने, and respect for them. These scholars were known as Orientalist. The Orientalist studies, thus यहाँ पे they focus more on Vedic tradition and Sanskrit literature. उनका फोकस वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लैंग्वेज पे था, उनके लिटरेचर पे था, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस नीचे आ जाइए। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserves a special, आगे mentioned in his opinion Sanskrit was the most ancient language of Indo-European language. It was the most ancient language of Indian-European language. He first translated the Sanskrit text into हितोपदेश में उसने ट्रांसलेट किया संस्कृत को। यहां से पूरा 6.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। Now 6.2 is the nationalist historiography, उसके बारे में लिखना है। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा दूं तुम्हारे को। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी पेज नंबर 10 एंड 11, यहाँ से पैराग्राफ चालू हो रहा है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी का। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस who are trained in British education system show inclination to restore the pride of Asian glory of India. Incline हो गए वो और प्राइड बताए एशियन ग्लोरी ऑफ इंडिया, इंडिया की शान और शौकत जो थी वो सब बताया ना। सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियन रीडर, देयर राइटिंग्स वर नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, उसके उन्होंने जो लिखा उसे नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी कहा जाता है। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा, सुनहरा पल अपना जो था, सुनहरा जमाना था, गोल्डन एरा है ना ऑफ इंडियन हिस्ट्री। माधव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडाकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, ये सारे नाम हैं हिस्टोरियंस के। रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्राजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड आनंद सदाशिव अल्तेकर आर द नेम्स ऑफ सम रेनाउंड, ये बहुत नामचीन स्कॉलर्स थे ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस थे, ओके। ये सारे इंडियन हिस्टोरियंस थे। यहाँ पे मेरा 6 का सेकंड खत्म होता है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज subaltern history. It is on page number 12. ओके। subaltern history का पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे, देखो यहाँ से
The seeds of subaltern histories are found in Marxist historiography. The role of Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the ideas of history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society. Means the bottom base में जो society में है वहां से हिस्ट्री का लिखना चालू होना चाहिए. इनफैक्ट द सबाल्टन मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक. सबाल्टन का मतलब ही है बॉटम मोस्ट रैंक, बेस से. ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें. द फोल्कलोरे हैज बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबाल्टन हिस्ट्रीज. ये नहीं आएगा, ये मत लिखो, यहां से लिखो. रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग सबाल्टन हिस्ट्री. रंजीत गुहा ने बहुत अहम रोल प्ले किया सबाल्टन हिस्ट्री में एज एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक ऑफ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी. बिफोर द ऑनसेट ऑफ सबाल्टन आइडियोलॉजी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. इसके पहले भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिमिलर थॉट्स दिए थे. महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शुद्रति शुद्रा कम्युनिटीज इन द बुक गुलामगिरी. गुलामगिरी में उन्होंने ये लिखा, शुद्रति शुद्रा के बारे में बताया, कम्युनिटी के बारे में. ओके, द टर्म्स ऑफ शुद्र एंड अति शुद्र इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम. नीचे बॉटम मोस्ट रैंक जो है कास्ट सिस्टम में, जो पहले मानते थे कि भाई दे आर वेरी लो रैंकिंग पीपल्स. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट consistently wrote about it. Two of his book, Who Were the Shudras and the Untouchables, may be cited as an example of the history of subaltern type. तो ये दो बुक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखे हैं. Who were the Shudras? शुद्रास कौन थे? The Untouchables, अनटचेबल्स किनको कहा गया है, ये सारी बुक उन्होंने लिखे हैं. दिस आर द एग्जाम्पल, ये मेन एग्जाम्पल है ना सबाल्टन हिस्ट्री के. ओके, यहाँ पे आंसर खत्म होता है 6.3. और मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव फिनिश्ड. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.